شادی جو ہے، جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو ایک سوال کیا جاتا ہے، اور وہ سوال کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ اور یہی سوال 3 دفعہ کر دیا جاتا ہے اور اس کا جواب مل جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سوال سے پہلے کچھ سوالات ہونے چاہیے، ان کے بارے میں نہ کوئی سوچتا ہے نہ وہ سوال کرتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ آج ہم اس پر بات کریں کہ شادی سے پہلے کون سے ایسے سوالات ہیں جو لڑکا لڑکی کو، ان کے گھر والوں کو ایک دوسرے سے کر لینے چاہیے اور کھل کر کر لینے چاہیے، تاکہ تمام ڈسکشن ہو جائے اور بعد میں کوئی کمپلیکیشن نہ ہو۔ ہاں، اور کیا اس قسم کے سوال بھی ہو جانے چاہیے جو عموماً سن کر دوسری پارٹی کو برے لگتے ہیں، لیکن کرنے آپ نے ایسا کہا جیسے کوئی جو ہے وہ ڈیل ہو رہی ہے، لیکن کرنے ضروری ہے، تو یہ زندگی بھر کی بڑی ڈیل ہے۔ اور ہمارے ساتھ اس پر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر نفسیات یاسر مسعود آفاق اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر سیدہ تسمیرہ صاحبہ، اور آپ کی فون کالز وہ بہت ضروری ہیں، آپ بھی اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیجئے۔ نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ تسمیرہ صاحبہ، آپ سے شروع کرتے ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جو کپلز کو یا ان کی فیملیز کو شادی سے پہلے ایک دوسرے سے پوچھ لینی چاہیے، اور کیا ان میں وہ سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں جو اگلی پارٹی کو بڑے معیوب لگے؟ مثال کے طور پہ لڑکا کماتا کیا ہے، اب لڑکا مائنڈ کرتا ہے یہ کہ آپ کماتا کیا ہے، لیکن پوچھنا بڑا ضروری ہے۔ عمر مثال کے طور پہ خواتین سے نہیں پوچھی جاتی لیکن پوچھنی ضروری ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ دونوں نے یہ ذکر کیا کہ وہ سوالات جو ایک دوسرے سے پوچھ لینے چاہیے، ایک دوسرے والے پہلے ضروری ہے۔ آپ نے کہا پارٹی، آپ نے کہا کہ ایک دوسرے سے سب سے پہلے خود سے پوچھ لینے چاہیے، سب سے پہلے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہاں، پہلے آپ خود سے پوچھ لیجئے کہ آپ اس انسٹیٹیوشن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں گھسنے سے پہلے آپ اس میں ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے یہ والا فیز آنا چاہیے، امپورٹنٹ ہے، آپ میں کیا کمی ہے، اپنے بارے میں اچھی طرح سے جان لیجئے۔ جب آپ کو سیلف اویئرنیس ہو جاتی ہے، پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے دوسرے انسان سے، ایک انسٹیٹیوشن سے، اور آپ کو کیا نہیں سوٹ کرتا۔ صحیح ہے۔ جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو سوٹ کیا نہیں کرتا، تو آپ غلط فیصلے کریں گے۔ اپنے آپ سے تو پہلے یہ پوچھ لینا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، مجھے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی، یس اور نو، ہم سب سے پہلے یہ جان لیں بھائی، سب سے امپورٹنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور کن وجوہات کی بنا پہ کرنی ہے، اور مجھ میں کیا کمیاں ہیں، مجھ میں کیا چیزیں ہیں۔ وجوہات بھی سب کو پتہ ہی ہوتی ہیں۔ شادی جو ہے وہ انسان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کمپینینشپ ہو، آف سپرنگز ہو، اس کے ایک سارا یہی سلسلہ۔ لیکن کچھ لوگوں کی ایک اور فلسفی بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں امی ابو شادی میں کر لوں گا، لیکن دوستوں کو بھی ٹائم میں 8 گھنٹے کے 8 گھنٹے دوں گا، اس میں برداشت نہیں کروں گا کہ بیگم درمیان میں آئے۔ تو وہ چیزیں، وہ فیصلے، پرائیورٹیز ان کی الگ ہوتی ہیں۔ پھر یہ بالکل صحیح بات آپ نے کی کہ یہ جو اب آپ کی لائف میں شریک ہونے والی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنے والی ہے کہ اس کے بغیر جو ہے نا، اس کے بعد میرے موڈ پہ بھی امپیکٹ آنے لگتا ہے، اور پھر وہ اس رشتے پہ بھی امپیکٹ آئے گا۔ سو کیا ایسا ہے کہ آپ اتنا ٹائم اپنے لیے رکھ لیں، میں اتنا ٹائم اپنے لیے رکھ لوں، کیا یہ آپ کو قبول ہے؟ تو یہ ہم دونوں ایسپیکٹ سے لے کر چلتے ہیں نا۔ اگر کوئی مرد ہے وہ شادی کرنا جا رہا ہے تو اسے خاتون سے کیا کیا سوالات پوچھنے چاہیے؟ پہلے مردانہ سوالات، پھر زنانہ سوالات پر آ جاتے ہیں، اس طرح ہمارے پاس ایک لسٹ بن جائے گی۔ اچھا، آپ نے بھی کہا نا کہ جیسے کچھ بنیادی سوال جو ہیں وہ تو کلیئر ہوتے ہیں، اصل میں وہ کلیئر نہیں ہوتا۔ اچھا، ہمارا روزمرہ کا جو تجربہ ہے، جو شادی کے معاملات اور میریٹل تھیراپی کے دوران ہم نے دیکھا کہ بہت فنڈامنٹل کوسچنز بھی ان آنسرڈ رہتے ہیں یا ایمبیگوسلی آنسرڈ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ نے کہا جی شادی کے لیے جی بچے اور کمپینینشپ، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، موٹیو ہوتی ہیں۔ بچے کب ہوں، کتنے ہوں، کمپینینشپ دوستوں کو زیادہ ٹائم دوں گا، یہ جو یہ نئی کمپینینشپ شادی فار دا سیک آف شادی کرنی ہے یا آپ انجوائے کرنے کے لیے بھی زندگی گزارنے کے لیے کرنی؟ اچھا، پھر نیا جو میٹرکس ٹائم اور انرجیز اینڈ ریسورس میٹرکس بنے گا، آپ اس چیز پہ کلیئر ہیں؟ آپ بہت دوست یار باش انسان ہیں، مردوں کی بات کر رہا ہوں نا کہ وہ ہیں، اور شادی کے بعد بھی آپ کہیں کہ وہ جو پارٹیز بوائز ٹائم آؤٹ جو ہے وہ بھی ویسی رہے گا، تو ویسے نہیں ہوگا۔ کیا آپ کمیٹڈ ہیں اس فنڈامنٹل چینج ان یور لائف کے لیے؟ اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان کو بھی لے لیتے ہیں، تارا خان ترکی سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی فرمائیے جی، کیا سوال کریں گے؟ یہ جو شادی کے سوالات ہیں اس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ چاروں کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ اور میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، کوسچن یہ ہے میرا کہ ایک شادی کے بعد جو ایک کپل کے درمیان جو مسئلے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، آپ دوستوں کو بیچ میں لا رہے ہیں، ان دونوں کی کمپینین کو لا رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کا خیال نہیں ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا رول
लड़के की और लड़की की माँ का होता है, उनकी फैमिली का होता है, क्योंकि ओके ठीक है, इट्स जस्ट ब्रेक। अगर आप दोस्तों के पास जाते हैं, बीवी को भी ब्रेक मिल जाती है कि दोस्तों के पास चला गया, वहां से वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, आपका सवाल समझ में आ गया। ये जो बात हो रही है कि वालिदा का इन्फ्लुएंस, अब इसको भी शुरू में डिस्कस होना चाहिए कि आपके फैमिली के जो एल्डर्स हैं उनका हमारे मामलात में कितना अमल दखल होगा। लड़की की जब आपने बात की ना, देखिए हम ट्रांजिशन में हैं, अभी हम कंबाइंड फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शायद ट्रांजिट कर रहे हैं। ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है कि मेरी एग्जिस्टिंग, मैं एक मेल हूँ, मेरी एग्जिस्टिंग फैमिली का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे भाइयों का, मेरी भावजों का, उनका क्या रोल होगा। हम इकट्ठे रहेंगे शादी में, बाकी रसूमात में, कोई इवेंट्स में, क्या तर्ज अमल हमारा क्या होगा, इस पर दोनों का फंडामेंटली एग्रीड होना ज़रूरी है। और ये दोनों को पता भी हो, दोनों को पता होना चाहिए, बहुत क्लोज है, हर चीज़ में इंटरफेयर करते हैं या दूर दूर रहते हैं, कि ये जो मामाज बेबी है तो मामाज बेबी है, ओवरनाइट वो चेंज नहीं होगा। तो अगर बाकी कुछ गुण अच्छे हैं तो चलिए, क्या ये चीज़ फैदम की जा सकती है ऑन द पार्ट ऑफ फीमेल्स। मेल्स की तरफ से भाई एक खातून है, उनकी 9 बहनें हैं, बहुत फैमिली में बहुत क्लोज आना जाना है, हर दूसरे तीसरे दिन होगा, तो फिर आप कहें कि नहीं जी मैं तो इतना टाइम नहीं स्पेयर कर सकते। आपको पहले बताना चाहिए कि सब बिग फैमिली। इस पे आपका टेक क्या है? एक सेकंड, आपका टेक हम लेते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, नासिर साहब है कतर से। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। बड़ी इंटरनेशनल कॉलें आ रही हैं। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। पहले तो आप सबको सलाम। दूसरा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ शिवा साहब जी। जी मैं दोहा कतर से बात कर रहा हूँ, तो मैं कभी कभी ट्वीट करता हूँ, आप ट्वीट के ऊपर कभी लाइक भी नहीं करती। पहले ये मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम में तो मौजूद पे डिस्कस कर लें, ये ट्विटर पर ही आप पूछिए कि भाई क्यों नहीं आप लाइक करती। हाँ ना, पहले जब कंप्यूटर इनके वो थे तो प्रोग्राम का मौजू का कोई सवाल है कोई तो बताएं। जी उस पे तो मैं भी अभी तो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पूरा सुना नहीं है ना। ठीक है, आपका गिला नोट कर लिया आपने, गिला लाइक कर दिया कर लिया है। दरअसल बहुत सारे कमेंट्स होते हैं या बहुत सारे लाइक्स होते हैं, उनको हम कैसे हर एक को जवाब दें, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं पढ़ती जरूर हूँ, जो आप लोग लिखते हैं अच्छी चीजें वो भी मैं पढ़ती हूँ और जो बुरी चीजें लिखते हैं वो भी मैं पढ़ती हूँ। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब साउथ अफ्रीका से। सर आप तो आखिरी दफा पीएम ऑफिस में। जी सर, क्या सवाल करेंगे? सवाल मेरा सबसे पहले तो मैं सबको सलाम करना चाहूंगा। वालेकुम अस्सलाम। दूसरा ये है कि 2-3 चीजें हैं जो सवाल कम थोड़ा सा एक सवाल कर दें सर, वो क्योंकि कमेंट तो फिर हमने एक्सपर्ट्स बुलाए हुए हैं ना। अच्छा बताएं। नहीं मेरे ख्याल में कम से कम जो है ना 6 महीने जो है ना दोनों फैमिली को मिलना चाहिए। 6 महीने हाँ जो है हाँ, और सबको जो है ना नमाजी होना चाहिए, दोनों फैमिली को देखना चाहिए कि नमाजी हैं, ठीक है ना। ये 2-3 चीजें हैं जो आप करें तो इंशाल्लाह कभी भी जो है ना मसले मसाइल नहीं आएंगे। और दूसरा एक चीज और जी। कि जो जितनी भी ये जो तरबियत है ना बच्चों की, वो शुरू से ही जो ना मैटर करती है, शुरू से मैटर करती है कि आप अगर बच्चों की तरबियत शुरू से सही करेंगे तो ये आने वाले वक्त में सारे मसले मसाइल जो है नहीं आते हैं। बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब। तस्वीरा साहिबा, एक तो रिलीजियस फैक्टर कितना अगला फॉलो करता है, कितना ज्यादा इनग्रेव्ड है उनकी फैमिली में, ये भी पता होना चाहिए या नहीं, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके से? क्योंकि उन्होंने भी ये बात की। नहीं, ये बात की और मुझे ना उसी वक्त मेरी कल की ही जो थेरेपी है वो याद आ गई। बहुत रिलीजियस फैमिली से हैं और डिवोर्स के नहज पे हैं। अच्छा। सो नहीं, दिस डज नॉट मैटर, इसलिए क्योंकि रिलीजन की इंटरप्रिटेशन हम सबकी अपनी होती है। वो जो खातून हैं उस पूरे उसमें वो कह रही हैं कि मेरे भी तो हुकूक हैं, सिर्फ मुझे रिलीजियसली मेरे फ़राइज़ बताए जाते हैं। हाँ। जो हजरत हैं वो कह रहे हैं कि मैं तो अपने फ़राइज़ अदा कर रहा हूँ, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन होती है। तो अगर आप कह दें जी रिलीजियस हो, नमाजी हो, मुझे क्या पता नमाज की नीयत किसकी कितनी अच्छी है, कितनी नमाज खातून है कोई, वो चाहती है वो बुर्का करे या बाल कवर करे, वो एक रिलीजियस अटायर में रहना चाहती है, और अगर फर्ज करें आगे आने वाले वक्त में मर्द ये ना चाहे, वो कहे कि भाई हटाओ तुम सर से, मैं चाहता हूँ कि तुम जहाँ मैं उठता बैठता हूँ वहाँ हो जाना चाहिए। तो ये चीजें अगर पता होंगी एक दूसरे को तो वो फर्दर प्रॉब्लम शायद अवॉइड हो सके। अच्छा देखें, जो आप कह रहे हैं ना पहले से तय हो जाए, क्या जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होता कि इंसान तब्दील हो जाता है? बिल्कुल सही। क्या उसकी गुंजाइश रखनी चाहिए या हमें एक दूसरे को इतना समझने में ज्यादा जोर लगाना चाहिए कि वो प्री डिसाइडेड, जो आप कह रहे हैं ना कि पहले से प्री डिसाइडेड चीजें? देखिए ये तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि सिमिलैरिटीज हम देखते हैं, बिल्कुल कुफू का कॉन्सेप्ट है। सिमिलैरिटीज तो हम बिल्कुल देखते हैं, लेकिन
ह्यूमन एरर या जजमेंट की वो आती है। तो सबसे ज्यादा जो हमें चीज देखनी चाहिए वो है गुंजाइश, अडेप्टेबिलिटी कितनी है दोनों फैमिलीज में। और जो आपका पिछला सवाल था कि उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि इनकी वालदा या उनकी वालदा, वालदा एक फैक्टर है, ठीक है। सो इनकी उनकी सिर्फ वालदा नहीं, ये वालदा वाला फैक्टर जो है ये काम की सूरत में भी आ सकता है कि ये काम बहुत ज्यादा करते हैं, ये टाइम नहीं देते। खातून ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, ये घर को टाइम नहीं दे रही। तो ये जो थर्ड फैक्टर है ना, ये न सिर्फ उनके बेडरूम से बल्कि उनकी लाइफ से कैसे बाहर और कब अंदर आए, ये मैनेजमेंट, चाहे आप मुकम्मल अंदर रखना चाहते हैं चाहे आप मुकम्मल बाहर रखते हैं, यू डिसाइड। प्री डिस्कशन होनी जरूरी है। सही है यासिर साहब। अच्छा, दो बातें बहुत अहम हैं। एक तो ये है कि जैसे हम मेडिकल कंपैटिबिलिटी को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि जैसे थैलेसीमिया माइनर दो जो पार्टनर्स होते हैं उनकी शादी होगी तो एक थैलेसीमिया मेजर ऑफस्प्रिंग पॉसिबल। Why not a psychological and emotional compatibility based on scientific investigation? Yes, I'm talking about psychological assessment, psychometric assessment. Currently House of Wellness में हम जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त House of Wellness में हम एक compatibility scale develop कर रहे हैं for expatriate Pakistanis। जी हमें अप्रोच किया कनाडा बेस्ड एक फिलैंथ्रोपिक एक एंटिटी ने कि जी यहाँ बहुत मसला है, हम लड़के लड़कियों की शादी कराते हैं और स्पेशली जरा कीप द कॉन्टेक्स्ट इन माइंड कि लड़का यहाँ से जा रहा है या लड़की यहाँ से जा रही है, पता नहीं है। और उन्होंने हमें बहुत इतने अच्छे पर्टिनेंट क्वेश्चन पुट अप किए कि हमें एक्चुअली पर्सनैलिटी के इंडिकेटर्स एनालिसिस में क्या होता है, मतलब आप देखिए प्रोफाइल है, प्रोफाइल एक काम करें ना, मेरा कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर ले, बंदा आपके सामने मौजूद है, एक शर्त पे कि जो रिजल्ट आएंगे पब्लिकली बताऊंगा, कोई मसला। दूसरा पार्टनर तो क्या हुआ, भाई वो होता है ना, आप चले पार्टनर पे डिसाइड करें, टायर है गाड़ी डलवा लें इसमें, कोई भी आप रख लीजिए। कंप्यूटर बेस्ड गेम नहीं है कि आप कंप्यूटर के साथ खेलेंगे, कोई मसला नहीं, वो चूज कर लेगा कंपैटिबल। आप हायरिंग करते हैं यहाँ अगर एंकर के लिए, रिसोर्स पर्सन के लिए, क्या आप जॉब डिस्क्रिप्शन से उसकी कंपैटिबिलिटी, उसके कैंडिडेचर की कंपैटिबिलिटी एस्टैब्लिश करते हैं बेस्ड ऑन साइकोमेट्रिक असेसमेंट? मैं आया हूं आपके पास, आप मेरा एनालिसिस कर दें। हम करने लगे हैं अवैस की कंपैटिबिलिटी एनालिसिस। दूसरा पार्टनर तो अब तलाश गुमशुदगी जारी है अभी तक, लेकिन आफाक साहब अवैस के जो पॉइंट्स है वो आप अवैस से लेंगे और जो दूसरे पार्टनर का कंपैटिबिलिटी कंप्यूटर में डाल दें, जो कंप्यूटर चल रहा है मैं देख लूंगा फिर। तो ये आप करें जी, उनका ही इज ऑल योर्स। अच्छा, शर्मा के बैठूं या वैसे ही नॉर्मली बैठूं? मुश्किल होगा आपके लिए शर्माना। अच्छा देखिए, और लाइटर नोट, एक तो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग और फिर आपके पोटेंशियल मैच की पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग, फिर इन दो प्रोफाइल्स की कंपैटिबिलिटी जो है वो असेस। वो एलिमेंट्स कौन से होंगे प्रोफाइल? अच्छा देखिए, वो कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, मैं जिन चीज़ों पर एम्फसाइज करता हूँ और हम अपने स्केल में जिन चीज़ों को अकाउंट फॉर कर रहे हैं वो फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ लाइफ है, जो स्ट्रांगली हेल्ड है। फंडामेंटल वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, फॉर इंस्टेंस एक वैल्यू लेते हैं, कॉन्टिन्यूम ऑफ मटीरियलिज्म। एक तरफ एक दरवेशी है और एक तरफ बहुत मनी माइंडेडनेस और एक तरफ बस जस्ट यू वांट टू बी अ टाइकून। अब इस कॉन्टिन्यूम में आप कहाँ प्लेस्ड हैं, ये आपकी प्रोफाइल एट्रीब्यूट है। अच्छा, अब एक तो ये होगा, मिसाल के तौर पर अगर आपने मुझसे सवाल पूछा कि भाई आप मटेरियलिस्टिक ज्यादा हैं, इस तरह नहीं पूछूंगा। अच्छा, ऐसे तो मैं ये कहूंगा कि भाई पहले मैं तो यही कहूंगा। एग्जैक्टली, देखिए इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसकी साइकोमेट्रिक आइटम्स जो हैं वो हम बनाते हैं, इसके जो स्केल्स होते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि जितने भी आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, आर्मी में सिलेक्शन है या सिविल सर्विसेज में है, इसके अंदर बहुत सिस्टमेटिक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होती है। उसमें नहीं पूछा जाता आप जंग हो जाएगी तो आप शहीद होना पसंद करेंगे, गाजी होकर वापस लौटेंगे। दैट इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, वी गो इनडायरेक्टली टू असर्टेन हु आर यू। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग जो है, अब मैं बात कर रहा था फंडामेंटल वैल्यूज, जैसे एक मटेरियलिज्म है, दूसरा है वर्क फैमिली कॉन्टिन्यूम। अब ये फंडामेंटल वैल्यू ऑफ लाइफ है, स्पेशली विद द ऑनसेट ऑफ दिस वर्क फ्रॉम होम और दीज गैजेट्स, इट इज 24/7 थिंग। अब आप अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम कितना देने पर बिलीव करते हैं? आप फास्ट लेन में चलना चाहते हैं अपनी करियर की दौड़ में, या मिडल में, या कभी कभी स्लो लेन में भी आना पसंद करते हैं, राइट? और आपकी वेकेशंस का आइडिया क्या है? वेकेशन वंस इन अ मंथ होनी चाहिए या वंस इन अ कपल ऑफ इयर्स भी हो जाए तो बड़ी ठीक बात है, राइट?
सो ये फंडामेंटल वैल्यूज आपकी क्या हैं, आपके पोटेंशियल पार्टनर की क्या अच्छा, और ये दोनों के एक जैसे होने चाहिए तो सही मैच होगा, वो वाला थ्योरी तो नहीं चलती इसमें, ऑपोजिट अट्रैक्ट वाली। सिमिलैरिटी एक चीज़ है, दूसरे जो तस्मीरा ने बात की शायद वो इसको एम्फसाइज करें कि फिर अकोमोडेटिव आप कितना होंगे। वी हैव बीन मैरिड टिल 17 years, we are poles apart, मतलब कई लोगों को अकोमोडेट कर सकता हूँ जिंदगी एट अ टाइम कर सकते हैं ये। तो उसमें नोइंग ईच अदर हमें आफ्टर 17-18 years हमें पता चलता है कि अच्छा ये भी चीज़ खसलत हम में पाई जाती है, अच्छा। लेकिन अब मार्जिन ऑफ अकोमोडेशन बढ़ गया है, राइट, कि ओके आई विल अकोमोडेट इट बिकॉज देयर आर फ्यू अदर थिंग्स व्हिच आर फैबुलस ऑन हर पार्ट, सो दिस थिंग इफ इट इर्क्स मी आई हैव टू। अच्छा, और ये कितने परसेंट यूं कह लें कि ये सही होता है, क्योंकि ज़ाहिर 100% तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, लेकिन क्या हमें 50-60% अंदाजा हो जाता है कि हाँ इस शख्सियत के ये गुण हैं? इससे ज्यादा हो जाता है। Okay. मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। हमारे पास तो जी जैसे हम बात कर रहे थे कि पोस्ट मैरिटल तो लोग आते हैं तो हमें वहां पता चलता है जी कि इतनी फंडामेंटल वैल्यूज पर एक इख्तलाफ था और शादी भी हो गई, ओवरव्यू हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मैरिटल थेरेपी की बात आई, ये हम पहले कितनी करते हैं? हमारे यहाँ आपको पास केसेस आते होंगे, ज़ाहिर है, आई एम श्योर आपको पता होगा कि पहले होती है लोगों में रुझान या बाद में करने का रुझान है, और अगर बाद में करते हैं तो उसका सक्सेस रेट क्या होता है? क्योंकि एक दो कपल से तो मैंने सुना कि उन्होंने कहा हमने सब कुछ ट्राई किया, वी आर एट द सेम स्पॉट, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आ गए हम, जितने दी खोती होते आ गलती होता है, तो वो कुछ नहीं होता फायदा। बताएं तस्मीरा। पहले तो कोई भी नहीं करवाता ऑनेस्टली। अच्छा, हमारे यहाँ जो फोकस है वो वेडिंग पे है, मैरिज पे नहीं। ठीक है, तो पहले तो कोई भी नहीं करा। जितनी आप वेडिंग की तैयारी करते हैं ना, उतनी अगर आप मैरिज की तैयारी कर लें तो वो तो पहले कोई नहीं कराता। सबसे ये जो हासिल जो है ना आज की गुफ्तगू का हासिल ये वाला जुमला है, ये वाकई। सो इसमें ये है जो और आप जो प्रिडिक्टेबिलिटी की बात कर रहे थे ना कि 90-80 अगर 50-60% भी हो जाए, इम्पॉर्टेंट क्यों है? आपको वैसे पता चलेगा किसी सिचुएशन में घुस के, आपको तब अपने बारे में अंदाजा होगा कि मैं ऐसे करता हूँ। भाई मैं झूठों के साथ काम नहीं कर सकता, मुझे नहीं बर्दाश्त होता ये। बट जब आप झूठों के साथ उठ बैठ रहे हैं तब आपको ये पता चला। तो अगर इसके बारे में प्रिडिक्टेबिलिटी 50% ही हो जाए, शादी होने से पहले तो आपको पता नहीं है ना कि शादीशुदा होके आप कैसे बिहेव करते हैं। आज से पहले तो आप हस्बैंड हैं नहीं, तो आपको पता नहीं है। तो प्रिडिक्टेबिलिटी बता देती है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में आप इस तरह से बिहेव करेंगे, कर सकते हैं। हाँ। तो वो जितनी भी प्रिडिक्टेबिलिटी आपके हाथ लगी वो बहुत अच्छी है। पता चल गया कि आप जो इनकी बात थी कि बाद में कितनी कामयाबी का बाद में कितनी कामयाबी, ये डिपेंड करता है कि कितने ओपन माइंडेडली लोग आए हैं हेल्प सीख करने के लिए। सही है। क्या आप ब्लेम गेम के लिए आए हैं? कुछ लोग सिर्फ ये साबित करने के लिए आ रहे होते हैं कि आप मेरे हस्बैंड को दिखा दें वो कितने एट फॉल्ट हैं, आप मेरी बेगम को दिखा दें कसूर। इफ दे हैव कम टुगेदर, सॉरी, कि टू मेंड दिस मैरिज, देन इट वर्क्स बिकॉज दे पुट इन एन एफर्ट। लेकिन अगर वो इसलिए आए कि साबित कर दें कि ये कसूरवार है, फिर कुछ नहीं। शिफा, अगर एक्सपेक्टेशन ये है कपल की आते हुए या उनके स्टेक होल्डर्स की कपल को लाते हुए कि दूसरे में कुछ चेंजेस इंड्यूस करती जाएं, देन थेरेपी इज बाउंड टू फेल। अगर प्रीएम्बल या अगर प्रिपेयर्डनेस इस पे है कि अच्छा मुझे भी कुछ तब्दील होने की जरूरत और गुंजाइश होगी, बिल्कुल, फिर लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस इन मैरिटल थेरेपी बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ होता ही यही है कि जनाब देखें, मैंने तो जितनी कुर्बानियां देनी थी दे दी, अब मेरी इसको ठीक करें अब आप। और ये तो मुश्किल मरला है। अच्छा, ये जो एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि एक और कॉलर ने जो बात की थी कि भाई 6 महीने की वो उन्होंने बात की कि 6 महीने एक दूसरे को जाने, तो ये इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं वो कि भाई इंटर्नशिप करवा लें या अप्रेंटिसशिप कह लें उसको। वैसे कितना अरसा जानने के लिए ज़रूरी होता है? कुछ लोग कहते हैं भाई वो हमने तो एक ही लम्हे में सोच लिया था, समझ लिया था, परख लिया। और फिर दूसरी तरफ ये भी होता है कि 6-6, 2-2 साल की मंगनियां और रिश्ते चल रहे होते हैं और आखिर में वो खत्म हो जाती हैं बिफोर मैरिज। शादी होने से पहले ही मंगनी टूट गई क्योंकि हमें तो ये पता चल गया था कि वो लड़का तो ऐसा है। तो वो कितना ड्यूरेशन होनी चाहिए और उसका फायदा नुकसान क्या होता है? मैं आपकी इस बात को तो सक्सेस कहूंगी। अच्छा, मंगनी खत्म हो गई यानी कि अप्रेंटिसशिप थी, आपको पता चल गया कि आप इस जॉब के लिए पर्पस अचीव हो गया, पर्पस अचीव हो गया, ठीक है। तो उनके लिए वो 2 साल काम आ गए, ठीक है। अब ये जो आप कह रहे हैं कितना टाइम होना चाहिए, इस पे मैं कहूंगी कि जितनी मुलाकातें हैं, कुछ मुलाकातें विद प्रोफेशनल्स हों, प्री मैरिज हों, ताकि जो देखा जा रहा है, क्योंकि आप भी बेस्ट बिहेवियर पे हैं, दूसरे भी हैं, फिर वो जो चाय की प्याली उठाते हैं उसका तरीका ही ऐसा होता है, ये ऐसे बैठ के 2 मिनट्स ऑफ बेस्ट बिहेवियर ये। और आपके एक कॉलर ने कहा कि जितनी बातें छुपाई जाती हैं
वो बात में सामने आती हैं. सो व्हेन अ प्रोफेशनल इज देयर तो फिर पता चल रहा होता है जी ये हाइडिंग टेंडेंसीज जिसे हम कहते हैं, ये फैमिली तो वो दिखा रही है, डिग इन करें जी ये हाइडिंग टेंडेंसीज अदाकारी कर रहे हैं जी. बिल्कुल सही. सो ये प्री हो जाए विद प्रोफेशनल्स हो जाए, सो इट्स रिगार्डलेस 6 महीने 2 साल, इट डजंट मैटर, बट इट हैज टू बी विद प्रोफेशनल्स. अच्छा, एक और सिनेरियो भी होता है, लड़का लड़की से कहा जाता है जी अब दोनों सब घर में बैठे हुए जी आप दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर लें. उस वक्त कौन बात कर सकता है उस सिनेरियो में? सारे घर वाले बैठे हैं, मैं उनसे क्या बात करूं? और अब्बा भी बैठा हुआ होता है उस लड़की का, अब तू कर बात मेरे सामने. वो ये एटीट्यूड आप आपस में बात कर लेंगे, चलिए थोड़ा सा है कि जी अच्छा वो उधर जाके जरा इधर आप इधर बैठे दिखाओ इनको, घर का गार्डन दिखाओ, और वो क्योंकि ड्राइंग रूम गार्डन के सामने है तो खिड़की से हम तो अपार्टमेंट में है ना, हमारे यहाँ पे गार्डन वार्डन, और उन्हें पता भी है कि इस वक्त जो है ना अंडर लाइम लाइट है वो है. ये सो देखिए It won't work. इट नेवर. ये एक अहम बात है. अरेंज मैरिजेस के अंदर हम बहुत स्ट्रांगली इनकरेज करते हैं पेरेंट्स को कि आप जो है एक ओपन एंडेड और थोड़े से उनके पर्सनल टाइम में उनकी आपस में गुफ्तगू या मुलाकात का एहतमाम करें.